Good afternoon to everyone. Today we shall learn some important definitions of important words which are helpful. First of all, grammar, because we have started the chapter of grammar, that is tense. But before that, we should know what is grammar. So you can see on the screen. Will anyone read it? What it has been written here? What is the definition of grammar? I have written. Simran, will you read? What is the definition here? Speak out. Yes, so we can say grammar is the discipline of language. Now, all of you speak together. What is grammar? Everyone should speak, not a single student. So you will speak all together. What is grammar? No one is speaking. Very good. But do you know why is it called the discipline of language? Okay, so first of all, beta, we have to understand what is discipline. Discipline is required everywhere. It is necessary, it is essential in each and every field of life. Either in your family, you will notice that there are some disciplines in your family also. There are some disciplines in our society also, where we live. There are some disciplines in our schools also, in our organization also, even in our country also. Our country also runs on discipline. Do you know what is the discipline of our country? That is constitution. Our constitution, that is in Hindi called Samvidhan. So what is constitution? That is the discipline of our country. Without discipline, no any work can go on smoothly. Without discipline, one can never be successful in his life. You realize, you think, when there will be absence of discipline in school, what will happen? Do you think teaching and learning process will go on smoothly without discipline? There is a timing, proper timing to reach school. There are some periods which have been allotted. In that period, teachers come on their time. What are these things? These are part of discipline. Not only students, teachers also follow discipline. Then work goes on smoothly. Now you have understood the meaning of discipline. Discipline is not a fearful word. Mostly students think discipline is a very fearful word. No, it is not so. Discipline is very delicate word. It only teaches you how you can achieve success in a systematic way. But most of the persons fear of discipline. God knows what do they think, I can't say. In grammar also, in grammar, what do you find? Each and every chapter has some systematic function, and if these functions are not followed properly, then you will not write or speak correctly. That is why we can say it is the discipline of language. Is it clear? The next definition is the definition of tense. Who will read the definition of tense? Of course, yes, you can read aloud. Yes, tense is the study of the forms of verbs. Form means root, and verb you know very well.
It means in tense we study the different forms of verb. As you know, there are so many forms of verb: V1, V2, V3, V4, and V5. So tense is the study of the forms of verb. And voice. You also know there are two types of voice: active voice and passive voice. You know very well about it. I have already taught you in classroom active voice and passive voice. First of all, we should know what is voice. So voice is that form of a verb. Keep it in your mind and you will learn the definition, every one of you. It is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. वॉइस जो है वो क्रिया का वो रूप है जो बताता है कि हमारे वाक्य में जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है वो कुछ कर रहा है, वो कुछ करता है या उसी के ऊपर कुछ किया जाता है। बात समझ में आई? यहाँ ये पता करना होता है कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम हो रहा है। तो वॉइस यही बताता है। अब इसी को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो a verb is in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something. जब क्रिया का रूप ये बताता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वाक्य में वो कोई काम करता है, सब्जेक्ट ही यहाँ पे काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एंड व्हेन अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म shows something is done to the person or thing denoted by the subject। जब क्रिया का रूप यह बताता है कि सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ किया जाता है, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम बीट्स श्याम। राम बीट्स श्याम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बताओ? श्याम सब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो कोई काम करता है, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कोई काम करता है। तो राम बीट श्याम, इसमें काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? पीटने का। तो पीटने का काम कौन कर रहा है? तो राम ना सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे राम सब्जेक्ट होगा क्योंकि राम काम कर रहा है। राम बीट श्याम। अब इसी को मैं कह दूं कि श्याम इज बीटन बाय राम, तो यहाँ पे श्याम जो है वो कोई काम तो नहीं कर रहा, श्याम के ऊपर ही काम कर किया जा रहा है, श्याम को पीटा जा रहा है ना यहाँ। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। जैसे मैंने बताया था ना, ही इट्स अ मैंगो, तो वह जो है एक आम खाता है, तो वह यहाँ पे कोई काम कर रहा है। लेकिन अब मैंगो इज ईटन बाय हिम, तो यहाँ पे मैंगो जो है वो सब्जेक्ट बनकर आया पैसिव वॉइस में, लेकिन मैंगो तो कुछ नहीं कर रहा। मैंगो को तो खाया जा रहा है ना, खाने वाला तो कोई और है। आर यू गेटिंग और नॉट? सभी बच्चों को समझ में आ रही है बातें? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हैज एवरीवन टेकन इट्स स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। मैं इसको अब रिमूव कर दूं? ओके, चलिए लेट अस सी द स्ट्रक्चर नाउ। आई विल शो यू स्ट्रक्चर आल्सो। See, this is the structure of simple present tense. What is the structure of simple present tense? Subject plus V1 or V5 plus object. What has been written here? बोलो। हाँ, तो क्या स्ट्रक्चर है? बोलो।
यस, तो ये एक्टिव वॉइस में है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्टिव। तो एक्टिव मीन्स इट इज इन एक्टिव वॉइस। समझ में आई बात? ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सच एक्शंस व्हिच टेक प्लेस एज ए डेली रूटीन। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, किस तरह के एक्सप्रेशन के लिए करते हैं? तो वैसे एक्शन के लिए करते हैं, वैसे काम के लिए करते हैं जो डेली रूटीन की तरह होता है, रोजमर्रा का जो काम होता है वैसे। इट ऑल्सो शोज हैबिट, नेचर एंड यूनिवर्सल एक्शन। जहाँ पे हैबिट, नेचर की बात हो तो वहां भी हम लोग इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जहाँ पे यूनिवर्सल एक्शन हो, यूनिवर्सल एक्शन समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मीन्स दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो सबके द्वारा माना जाता हो। अब जैसे एग्जांपल देखो, सी राइट्स अ लेटर, वह खत लिखती है। तो वह खत लिखती है का मतलब ये नहीं है कि वो अभी खत लिख रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी खत लिखना होता है तो वो लिखती है, खत लिखने का काम वही करती है। तो ये एक तरह का रूटीन ही है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है, ये उसका डेली रूटीन है। यू ऑलवेज टेल ए लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, दिस इज हैबिट और नेचर। किसी की आदत है, वो हमेशा झूठ बोलने की आदत है उसको। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल एक्शन है। सूरज हमेशा तो पूरब ही में उगता है ना, कभी पश्चिम में भी उगा है क्या? तो इसको हम लोग तो इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाना हो सिंपल प्रेजेंट का, तो क्या करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लासरूम में बताया है ना। दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट इज चेंज इनटू नेगेटिव बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका निगेटिव क्या होगा? तो सी डज नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखती है। तो यहाँ ध्यान देना, अफर्मेटिव में सी राइट्स है यानी V5 है, मगर निगेटिव में क्या है? डज नॉट राइट है यानी कि V1 है। अब मैंने आपको बता रखा है कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर, बताया था ना मैंने। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर, इनके साथ हम लोग V5 लगाते हैं और निगेटिव में डज लगाते हैं। आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर, इनके साथ हम लोग V1 लगाते हैं और निगेटिव में डू लगाते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, नाउ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करना हो, क्या वह खत लिखती है, ये एक प्रश्न है, क्या वह खत लिखती है? तो डज सी राइट अ लेटर, यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो एज यू नो वेरी वेल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, all these are called auxiliary verb. So when auxiliary verbs are put before subject, the sentence become interrogative, and when auxiliary verbs are put after subject, sentence becomes assertive sentence. Assertive means affirmative or negative but not interrogative. There is one more sentence that is intronegative, means this is interrogative as well as negative. Does she not write a letter, क्या वह खत नहीं लिखती है? डज सी नोट राइट अ लेटर, क्या वह खत नहीं लिखती है? नाउ यू टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर और यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्योरी? तो हम लोग आगे बढ़े, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके गुड। हैव यू टेकन इट्स स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। हाँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग।
Now you can see this is also simple present, but this is the passive one, not the active one. You can see it has been written passive structure. अभी हम लोगों ने एक्टिव पैसिव की बात की थी ना, तो that was in active, this was in passive. This is also the structure of simple present, but this is passive structure. And you can see the structure object plus is mr plus v3 plus subject. So when sentence or verb is put in passive voice, so in place of subject object is put, and object in place of object subject is put. यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाता है. जहां पे सब्जेक्ट होता है वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहां पे हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं. और एक चीज और, पैसिव वॉइस में जहां हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं तो सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ना कि नॉमिनेटिव. अब ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, सबको पता है? Will anyone tell me, do you know subjective case and objective case? Tell me either yes or no. Okay, you know I. Suppose the word I and I is changed into objective case, it becomes me. I जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन मी जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. ही जो है वो सब्जेक्टिव हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हिम हो गया. सी नॉमिनेटिव केस में है, हर ऑब्जेक्टिव केस में. वी नॉमिनेटिव है, अस जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया. दे नॉमिनेटिव केस में है, देम ऑब्जेक्टिव केस है. समझ में आया? हाँ, तो सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे. तो देखिए, व्हाट डज द स्ट्रक्चर टेल अस? ऑब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस v3 प्लस सब्जेक्ट. One example I have written here, that is active voice. He eats a mango, and this one will be changed into passive according to a structure. So he eats a mango. Will you tell me what is object here? What is object in the sentence? He is a subject. My God, just I told you, eats. Eats is a verb. ईट मतलब खाना, तो खाना तो verb हो गया. अब तो मैंगो ही बच गया, लेकिन आपको पता नहीं है. मैंने अभी बताया ना कि जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. तो ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है. तो वह इसमें काम कर रहा है खाने का, तो वह तो सब्जेक्ट हो गया. ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वर्ब है. तो वह क्या खाता है? तो मैंगो. अगर आपको ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता है तो आप व्हाट लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा. जैसे ही ईट्स ए मैंगो, तो आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट डज ही ईट, तो क्या जवाब आएगा? मैंगो. इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट मैंगो है. यस. तो मैंगो इज ऑब्जेक्ट है. आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे. अगर कोई थिंग या ऑब्जेक्ट है तो व्हाट लगाना है, अगर कोई पर्सन है तो हुम लगाना है, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. जैसे राम बीट श्याम, तो हुम डज राम बीट, राम किसको पीटता है, तो आंसर आएगा श्याम. तो चलिए, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पहले रख दिया. आफ्टर ऑब्जेक्ट द स्ट्रक्चर टेल्स अस टू यूज इज एम और आर. तो व्हाट शुड बी यूज्ड विद मैंगो. व्हाट वी शुड यूज विद मैंगो, इज एम और आर. मैंगो के साथ क्या यूज होना चाहिए बताओ? इज होगा. बिल्कुल सही. तो अब मैंगो इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? ईट. ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन. तो हमने ईटेन लिखा. यस, एट नहीं, ईटेन. और उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को मैंने किस केस में रखने बोला? ऑब्जेक्टिव केस में. तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम. और सब्जेक्ट के पहले आपको बाई अलग से ऐड करना पड़ता है, इसलिए हमने बाई को ऐड कर दिया है.
तो योर सेंटेंस इज प्रिपेयर्ड हेयर, अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है, अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, आम उसके द्वारा खाया जाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है। निगेटिव, अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय हिम, आम उसके द्वारा नहीं खाया जाता है। इंट्रोगेटिव, फिर से वही करेंगे, ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, तो यहाँ ऑक्सिलरी क्या है, इज अ मैंगो ईटेन बाय हिम, क्या आम उसके द्वारा खाया जाता है। इज अ मैंगो नॉट ईटेन बाय हिम, क्या आम उसके द्वारा नहीं खाया जाता है। समझ में आ गई बात? सच्ची में सबको समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। प्लीज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, डू फास्ट। मैं देखूं कि आप कैसे बनाते हैं। और ध्यान रहे, अफर्मेटिव का पैसिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव वैसे ही होगा। फटाफट करके दिखाइए तो जल्दी से। हैव यू स्टार्टेड योर वर्क? ओके।